Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all have enjoyed your 2 days holiday, and I'm really happy that most of you have participated in poem recitation competition which was held on the occasion of Independence Day, and you all have really recited well. And in future also, I expect that you will participate in the same manner in various other activities and competitions. Children, let's start the class. You know that we were doing 3-digit numbers. In maths, we were doing 3-digit numbers, and we have done from 101 to 200 counting numbers, from 101 to 200, 201 to 300, and 301 to 400. And we have also completed activity worksheet 1, which was related to 101 to 400 counting. Children, we will continue with 3-digit numbers only because we have many more countings to be done. We have to do counting till 1000, and we have done till 400. So in today's video, we will be doing counting from 401 to 500, and 501 to 600, and 601 to 700. It means we will, in today's video, we will do forward counting from 401 to 700. Okay, and it is given on page number 22. The exercise is given on page number 22 of your maths book. Complete the grid from 401 to 700. So today we will complete that grid. Children, forward counting you have done till 400. We will do in the same manner. We will have grid here, and I will write counting for you. You will count along with me. आप मेरे साथ साथ counting करेंगे, and you will see the correct place of numbers. 3-digit numbers है तो 1s, 10s और 100 की place को आप ध्यान से देखते हुए you will read as per the places of the number. नंबर की प्लेस को ध्यान देंगे और उसी प्लेस के हिसाब से आप काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग लिखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. लेट मी मेक द ग्रिड फर्स्ट. हम 401 से 500 का पहले ग्रिड रेडी करेंगे. ठीक है, I have drawn lines here, and then I will take some colored chalks so that we can write in different colors. अलग अलग colors से हम लिख लेंगे इसको. Okay, and you will easily differentiate with the numbers. So let's start with 401. We'll start with 401. ये grid पहले मैं थोड़ा complete कर लूँ. Okay. In your book, grid is made in this manner, so that's why I'm drawing it. I don't have scale, that long scale, that's why lines are a bit. I will draw a line like this.
Children, in your book it is given in somewhat in this manner. I don't have scale, तो मैंने हाथ से ही ड्रॉ किया, but it is giving the look of that grid which is given in the book. आपकी बुक में इसी तरह का कुछ grid दिया हुआ है, and some numbers are already written in the grid. So let me write those numbers जो पहले से ही हैं इसमें. Like 401 is already given, then 441 is given, then 481 is written, then 409 is given. ये एक्स्ट्रा है, let me write this is extra. Okay, then 414 is given, then 417 given, then 423 is given, and 430 given, then 433 given, then 436 given, then 441, then 448 given, then 455 given, 460 given. All these numbers are given. Okay, then 464 given, then 467 given, then 472 given, 479 given, 481 given, 485 given, then 493 given, and 500. These numbers are already given in the grid. These numbers are already written in the grid. Now we have to complete this grid. अब इस grid को हम complete करते हैं, ठीक है? Let's start. It goes like this. ये हमें ऐसे counting करना है इसका. 401. This is read as 401. यहाँ पर 400 है. 0 क्या है? टेंस है. टेंस में कोई नंबर नहीं है, इसलिए वो 0 है. और फिर 1 कितना है? 1 ही है. तो उसको हम पढ़ेंगे 401, क्योंकि टेंस में कुछ नहीं है. We will write 402. It is read as 402. फिर 403. इसको हम पढ़ेंगे 403, क्योंकि टेंस कुछ नहीं है. टेंस एक भी टेंस नहीं है, एक भी टेंस नहीं है, इसीलिए हम टेंस की जगह पर 0 लिखेंगे. मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्लेस पर कोई नंबर अगर नहीं है, किसी प्लेस पर अगर कोई नंबर नहीं है, तो उसकी जगह पे हम 0 लिखते हैं. ठीक है, तो हमने लिखा 404 मतलब 404. 405 मतलब 405. 406 मतलब 406. 407 मतलब 407. 408 मतलब 408.
409 is already written, which means 409, and then 410, 410. अब यहाँ पर टेंस कितना है? 1, एक 10 है. 100 कितने हैं? 4 है, और टेंस कितना है? 1 है. तो एक ही टेंस, और वंस कुछ भी नहीं है. तो 400 इसको हम पढ़ेंगे 10, 110, 410. ठीक है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम 411, इसको पढ़ेंगे 411. मतलब 11 मतलब 1 is tens, 1 is tens and this is ones. एक 10 है, एक 10 है और एक 1 है. तो 10 और 1 11, 10 and 1 11. तो इसको हम पढ़ेंगे 411. फिर 400 1 2 12. ये 1 क्या है? टेंस है, और 2 क्या है? 1 है. तो कितने टेंस है? एक टेंस है और 2 वंस है. 10 प्लस 2 12. टेंस कितना है? 1, एक ही 10 है, और सिंगल कितने हैं? 2. तो 10 और 2 12. तो इसको हम पढ़ेंगे 412. अब हम लिखेंगे 413. मतलब 410 और 3 30. एक ये 1 का मतलब 110, 1 का मतलब 1 टेंस, और 3 मतलब 3 सिंगल नंबर्स, 3 सिंगल नंबर्स. तो 10 and 3 13, 413. दिस इज 414 मतलब 440, 440. फिर 415, 415 मतलब 450. 400 है, 10 कितना है? 1 है. 10 1 है, और सिंगल नंबर कितने हैं? 5. सिंगल नंबर है हमारे पास 5. तो हो गया 10 प्लस 5 15, 415. 416. दिस इज रेड एज 416. 10, एक 10 और सिंगल नंबर 6. तो 10 और 6 16, 416. 417 इज 417. एक 10 और 7 सिंगल नंबर्स. तो 10 और 7 17 हो गए 417. फिर हम लिखेंगे 418. 418 मतलब 418. 418. ये एक 10 है, 1 10, और सिंगल नंबर्स कितने हैं? 8 है. 10, एक 10 और 8, 1 10 and 8. कितना हो गया? 80. 10 और 8 80. 480. फिर 419 मतलब 400. ये तो 400 है ही है. ये 10 है, 1 10 और उसमें 9. 10 and 9 19. 419. फिर 400. अब 9 था, यहाँ पर 9 है, उसमें हम एक और नंबर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना. इस लाइन में एक और नंबर डालेंगे तो हो जाएगा 10. तो ये 10 पहले से ही है, और एक और 10. तो कितने 10 हो गए? 210. 210 मतलब 20, और सिंगल नंबर एक भी नहीं. तो इसको हम पढ़ेंगे 420. 420. अब यहां से लिखेंगे हम 421. दूसरे कलर से लिखते थोड़ा डिफरेंट रहेगा. लेट मी यूज दिस कलर. 421 मतलब 421. अब 2 क्या है? टेंस है. टेंस कितने हो गए हमारे पास? 2. 2 टेंस मतलब 20. 2 टेंस मतलब 20, और ये सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल नंबर, तो 1 21. 421. 422 मतलब 400. 2 टेंस मतलब 20. 2 टेंस मतलब 20, और 2 सिंगल नंबर, 20 और 2 22. तो 422. 423 मतलब 423. 2 टेंस मतलब 20, और ये 3. सिंगल नंबर कितना है? 3. तो हो गया 423. 402 424. 424. 2 क्या है? टेंस है. आपको ये समझना है कि इस लाइन में जहां भी टेंस की जगह पर हमने 2 लिखा है, मतलब कि टेंस कितने हैं? 2 हैं. 2 टेंस मतलब 20. 2 टेंस मतलब
20 और ये सिंगल नंबर है तो 20 प्लस 4 24 400 2 5 25 400 2 6 26 400 26 400 2 7 27 400 2 8 28 400 2 9 29 नाउ लिसन यहाँ पर 9 हो गया। अब इस 9 में एक और अगर सिंगल डिजिट डालते हैं 9 में एक और सिंगल डिजिट डाल देते हैं, सिंगल नंबर डाल देते हैं, एक और 1 डाल देते हैं। अगर मैं बोलूं 9 में एक और 1 डालेंगे तो हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। 2 10 पहले से ही है, एक और 10 हो जाएगा मतलब 3 10 मतलब 30 तो ये हो गया 3 10 सिंगल नंबर यहाँ एक भी नहीं है तो 3 10 मतलब 30 430 अब हमारा हो गया 430। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 431 431 मतलब 400 ये 3 क्या है टेंस है 3 टेंस मतलब 30 3 टेंस मतलब 30 और एक नंबर उसके साथ तो 30 और 1 31 400 4 हो गया 3 2 3 टेंस मतलब 30 3 टेंस मतलब 30 और उसमें 2 सिंगल नंबर तो कितना हो गया 32। तो इस लाइन में जो ये 3 दिखता है वो 3 क्या है टेंस है 3 टेंस मतलब 30 3 टेंस मतलब 30 तो उसके हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे तो 3 टेंस मतलब 30 और ये 3 सिंगल नंबर 33 4 3 4 मतलब 430 एंड 4 34 435 35 मतलब 35 435 फिर 436 437 438 सॉरी 36 तो पहले से ही था 37 एंड ये 38 437 is 437 438 is 438 439 is 439 ये जितने भी 3 हैं सेंटर में वो टेंस हैं 3 टेंस मतलब 30 और उसमें फिर सिंगल नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो ये 3 टेंस मतलब 30 और ये 9 39 और हर बार हमारा सिंगल नंबर बढ़ते जा रहा है। यहाँ 2 है ये 3 है ये 4 है 5 6 एक ऐड ऑन हो रहा है ना 7 उसमें 1 प्लस किया तो 9 8 2 में 1 प्लस किया 3 में 1 प्लस किया 4 में 1 प्लस किया तो 5 में 1 प्लस किया 6 में 1 प्लस किया 7 में 1 प्लस किया तो 8 में 1 प्लस किया तो 9 और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 तो 10 मतलब एक 10 और ये 3 10 पहले से ही है एक और 10 हो गया तो कितना हो गया 4 10 हो गया 4 10 मतलब 40 तो 440 ये हो गया हमारा 440। नेक्स्ट अब 441 मतलब 400 ये कितना है 410 है 410 मतलब 40 410 मतलब 40 और फिर उसमें ये 1 ठीक है तो 400 4 2 42 443 443 मतलब ये जहां भी ये 4 है सेंटर में जो 4 है ये 10 है 410 मतलब 40 और ये सिंगल नंबर्स हैं जो एक ऐड ऑन होते जा रहे हैं तो 442 443 444 445 446 447 448 is already written 449 यहां तक हम देखते हैं पहले देखिए यहाँ ये सब 4 टेंस है 4 टेंस मतलब
40, ठीक है 40, 4 10s मतलब 40, और उसमें 1 सिंगल नंबर 1, एक और ऐड हुआ तो 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस किया तो 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7 में 1 प्लस किया तो 8, 8 में 1 प्लस किया तो 9, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 9 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 4 10 तो पहले से ही हमारे पास 4 10 है, और एक और 10 हो जाएगा, 9 में 1 मिला देंगे तो 10 हो जाएगा, तो एक और 10 हो गया, तो कितने 10 हो गए 5 10, तो 4 और 10 कितने हो गए हमारे 5, 10 कितने हैं हमारे 5, और 1 1 एक भी नहीं है, तो 450, 5 10 मतलब 50, 5 10 मतलब 50, तो हो गया हमारा 450। नेक्स्ट 451, 5 10 मतलब 50 और फिर 1, 51, 4 5 2, 452, 4 5 3, 453, 4 5 4, 454, 4 5 5, 455, 4 5 6, 456, 400, 4 5 7, 457, 4 5 8, 458, 4 5 9, 459। जैसा मैंने बताया कि ये टेंस की प्लेस पर है 5, टेंस की प्लेस पर 5 है, मतलब 5 टेंस, 5 टेंस मतलब 50, तो ये 51, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमारा ऐड ऑन हो गया। 9 में जैसे ही हमने 1 मिलाया तो वो हो गया 10, 9 में 1 मिलाते ही क्या बन गया वो 10, तो 5 10 पहले से था हमारे पास, एक और 10 ऐड हो गया, तो कितना 10 हो गया 6 10, 10 कितने हो गए हमारे 6, 6 10 मतलब 60, और सिंगल नंबर एक भी नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा, तो 400, 6 10 मतलब 60, 460। नेक्स्ट इज 4 6 1, 400, 6 क्या है 10 है, 6 10 मतलब 60, 6 10 मतलब 60, और ये 1, 461, 4 6 2, 462, 4 6 3, 463, 4 6 4 मतलब 464, 4 6 5, 465, 4 6 6, 466, 4 6 7 मतलब 467, 4 6 8 मतलब 468, 4 6 9 469, अब इन 9 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 में एक और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। 6 10 हमारे पास है ही, एक और 10 बढ़ गया, 9 + 1 10, एक और 10 हो गया, तो कितने 10 हो गया हमारे पास 7 10, 400 है और 7 10 है, 1 कुछ भी नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे 470, 470। अब आगे 471 मतलब 471, 7 is 10, 7 क्या है 10 है, 7 is 10, तो 471, 472 is 472, 473 is 473, 474 474, 475 475, 476 476,
477, 477, 478, 478, 479, 479। अब ये 9 में हमने 1 और डाल दिया तो क्या हो गया 10, 10 हो गया, एक 10 और हो गया हमारा 7 10 पहले से ही था, 9 में 1 मिला है तो 10 हो गया, मतलब अब हमारे पास 8 10 हो गया, ठीक है, और 1 कुछ भी नहीं है तो 480, 480, 481, 481, 482, 482, 483, 483, 484, 484, 485 मतलब 485, 486 मतलब 486, 487, 487, 488, 488, 489, 489 और 9 में 1 डालने से फिर वो 10 हो गया, तो 8 10 पहले से ही था, एक और 10 मतलब 9 10, तो 409 10, 9 10 मतलब 90 और 1 कुछ भी नहीं, तो इसको हम पढ़ेंगे 490। नाउ 491, 491, 492, 492, 493, 493, 494, 494, 495, 495, 496, 496, 497, 497, 498, 498 and 499 मतलब 499 और ध्यान देना है हमें यहाँ पर ये 9 क्या है 1 से, 9 क्या है 1 से, तो इसमें हमने एक डाला तो कितना हो गया 10 हो गया, 9 10 हमारे पास पहले से ही था, अब हमने एक और 10 डाला तो कितने 10 हो 10 10 टेंस, 10 टेंस मतलब 100, 10 टेंस मतलब 100, ये है हमारा 9 9 में 1 डाला तो कितना हो गया 10 हो गया, और ये पहले से 10 था, कितने 10 थे 9 10 थे, 9 10 में एक और 10 आ गया तो 10 10 हो गए, 10 10 मतलब 100, तो हमारा ये हो गया 500, पहले 400 था और 99 है ना, ये इसको हम 99 पढ़ रहे हैं, तो 99 में एक और आ गया तो 100, तो 400 और एक और 100 आ गया तो कितना हो गया 500, तो हमने काउंटिंग खत्म कर ली, 401 से 500 तक की हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, वी हैव कंप्लीटेड काउंटिंग फ्रॉम 401 टू 500, ओके। Okay, children, we have completed the grid of your book. जो आपकी बुक में जो ये ग्रिड दिया हुआ है, we have completed the first grid. आपका हमने फर्स्ट ग्रिड कंप्लीट कर लिया है. This you have to complete in your book. आपको ये जो मैंने अभी ग्रिड करवाया, ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना. The grid is given in your book. Okay. The grid is given in your book. The grid which is given in your book, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, that you have to complete in book, not in copy but in book. Then you have 2 more grids. एक है 501 से 600 and 601 से 700.
Children, that grid we will complete in our next video. हम अपने next video में इस जो grid है उसको हम पूरा करेंगे. 501 से 600 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. आई होप आपको 401 से जो 500 तक था वो आपको समझ में आ गया है. काउंटिंग किस तरह से 1s, 10s और 100 की प्लेस के साथ हम रीडिंग करते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. ऑब्जर्व द प्लेस जहां पर वो नंबर है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू काउंट. 10s का प्लेस देखिए और किस तरह से 1s का प्लेस में नंबर्स चेंज होते हैं. अकॉर्डिंगली आवर काउंटिंग चेंज. जैसे जैसे नंबर हम ऐड ऑन करते हैं, 1 1 ऐड करते हैं तो हमारी काउंटिंग चेंज होती है. और फिर जब 10 तक हमारी सिंगल काउंटिंग जाती है तो कैसे हमारा 10s का पोजीशन चेंज हो जाता है, 10s का प्लेस चेंज हो जाता है. एंड फाइनली 10 10s होने पे हमारा 100 का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द काउंटिंग. ओके, we will do rest of the counting in our next video. Okay, if you have any doubt you can clear that in online class. We will meet in next video. Thank you.